Hi everyone. So today I'll be explaining the very first chapter of class 12 NCERT English. The name of the chapter is Last Lesson. So you will have to understand the meaning of this last lesson in a very deep way. So it is not the last chapter of a book. This is going to be the very last lesson that they're going to read in their life. So when I say this line, it means something significant has happened because of which they will no longer be able to study a particular lesson. They will be able to study, they will be going to the school. And when I refer to they here, it means students. So students will be able to go to the school, they will be doing all the normal course, but they will not be able to read a particular lesson from the coming days. And that is why we are going to read this chapter to understand what was the reason behind which they were unable to go and read this lesson. So if you can see, the very first thing that we should pay attention to is the name, right? So now this name is basically, can be pronounced in both the manner. It can be pronounced in English also, and it can be pronounced in French also. So if you have to speak this name in English, it will be Alphonse Daudet. So now he was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Russia. So now I like to give you a small insight of this Franco-Prussian War. This has been written before starting the chapter. So children, you need to know that there was once a war between France and Prussia. Okay. So you can say that Prussia is not a country. It is an independent state. It was an independent state, and it was a state of Germany. Okay. So this Prussia was a state. You cannot call it a country. It was a state in Germany. And France, as you all know, it's a country, and it used to be a country then also. Right now, it's very powerful, but there was a time when it was not that powerful. And during this Franco-Prussian War, which is mentioned, which has started from 1817 to 1871, France actually, French was actually defeated by Prussia, the Prussian army. So, whenever there is a war, there is a reason behind that war. People tend to know that, okay, we are going to have a war with them, so we are going to conquer this, right? Especially the property in the land. So what did Prussia did? They captured the land of the France. And suppose this is a border, if I draw the border here, so at least this portion they had already conquered. You can say the very starting portion. And then what they decided, they divided this region into two parts. Now, if I say there was, I will name it as first land and second land. So that land was divided into two parts. It belonged to Prussia only now, but initially it was part of France. So they gave the name of the first land as Alsace. The name that first land will be known as Alsace, and the second land will be known as Lorraine. Okay. So now this complete story is actually based on one student who was a resident of these districts. He used to be, he was studying in the same district, and what were the changes that were introduced after the Prussian army took control over that land. Now, even when India was under the control of Britishers, if you remember, Britishers had imposed so many new things, right? Similarly, here, this complete chapter is based on a boy and his experience after his land was captured by another foreign state, and why this lesson was last. That is what we are going to study. So we will, I think I've given you a brief introduction of it. So we will start. From the very starting, you can see there are some phrases. It's very important to understand these phrases as well. So in great dread of, whenever you see this word dread, it means fear. Just remember that. In great dread of means when somebody is fearful. Counted on, I think this is a very common statement you must have always read and heard also. Counted on means when you can trust. Thumbed at the edges means something which has been used before, you know, used multiple times, not even once, twice, but multiple times. In unison means when you have to do it together. Unison, united, it means when you do something together. Bustle means great energy. Okay. जब बहुत ज्यादा कभी you feel that it's a lot of energy in you, so you can say that there is a great bustle. Reproach means when you are guilty or ashamed of something. Okay.
So you remember this as guilty or ashamed. So we are going to use these phrases in the text also, and I will be reading the lines so that you know the meaning of every word and every line. So let us start. I started for school very late that morning. So I here is that boy. Okay. And the name of the boy here is Franz. So I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. So now you can see in the starting two lines that there is a boy, Franz, who got late to the school. Okay. One day he was going for the school, he got late, and he was also scared of some kind of scolding, especially because Mr. Hemal, so you can just mark it down, Mr. Hemal is the name of the teacher, had said that he would question us on participles. And I did not know the very first word about them. So this boy, friends, he's scared because his teacher, Mr. Hemal, had told these children that the next day when you will come to the class, we will be having a discussion on participles. And I will ask you questions on it. But because he was not ready or prepared for that topic, he had not studied earlier, he was quite scared. So he was scared for two reasons. Basically, first of all, he was late. He had to report late to the school. And second, he was not ready for the participle topics, right? For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. Now, this is a very common thing. When even you are not prepared for something, you want to run away from the school. You want to miss the school. You want to take a holiday. So similar thought came into the mind of Franz. He said that it's okay. Let me take a holiday today. Let me just go out and see the scenery outside. It was so warm, so bright. Now he's just telling you the environment of his surroundings, you can say, the surroundings where he lived. So it was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. So उसके जो environment में चीजें हो रही थी, birds थी, वो chirp कर रही थी, और बहुत ज्यादा अच्छा environment था. ये सारी चीजें वो अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स के बारे में बता रहा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट देवर प्रूशियन सोल्जर्स हु वर ड्रिलिंग. अब इसका सिग्निफिकेंस हमें आगे पता लगेगा कि वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स का रेलेवेंस क्या था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. मतलब टेम्पटिंग का मतलब यहाँ पे होता है अट्रैक्टिव. सो व्हाट इज ही सेइंग? फ्रांस इज सेइंग कि प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना, बर्ड्स को चर्प करते हुए देखना, ये सारी सीनरी जो थी वो पार्टिसिपल पढ़ने से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी. मतलब वो क्लास में जाके सिर्फ पार्टिसिपल्स को पढ़े, उससे बहुत अच्छा था कि वो ये सब चीजों को पढ़ ले, इन सब चीजों को देख ले. But I had the strength to resist and head off to school. So what is he saying? He said that still I had the courage, I had the strength कि मैं इन सब चीजों को avoid करके स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो गया. When I passed the town hall, now here there is one word known as town hall. So let me just tell you, this town hall basically is like a room made in a city or a town, you can say, okay, which is used for important announcements. जैसे हमारे जब भी हम किसी भी एक ऑफिस में जाते हैं या वर्क प्लेस में जाते हैं या फिर हम स्कूल्स में जाते हैं, तो हमारा एक पूरे बिल्डिंग में एक ऐसा कॉर्नर या एरिया होता है जहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स को. सिमिलरली फ्रांस के टाउन में जहां वो रहता था वहां पे एक टाउन हॉल था जहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती थी. मतलब कोई भी उस एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी वहां पे डिस्प्ले करी जाती थी. तो उस दिन वो क्या देखता है, जब वो टाउन हॉल पास कर रहा था, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. तो वहां का जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड थी, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे. कुछ ऐसा वहां पे डिस्प्ले था जिसने सब लोगों के अटेंशन को घेर रखा था, सबको घेर रखा था. तो अब उसके पास दो ऑप्शन थे. या तो वो बुलेटिन बोर्ड पे खड़े होकर वहां पे चेक करता कि वहां पे क्या है, और क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था स्कूल के लिए, सो ही डिड नॉट हैव टाइम टू स्टॉप देयर. इसलिए उसने क्या करा, उसने सोचा कि रहने देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेट मी सी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. अब वो यहाँ पे ये भी मेंशन करता है कि आज तक ज्यादातर न्यूज, मोस्टली न्यूज जो उस बुलेटिन बोर्ड से आई हैं, वो सारी बुरी न्यूज थी. The lost battle, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो जब उसने ये सोचा कि अभी तक इससे कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन बोर्ड से आई नहीं है, तो अभी भी मैं स्टॉप करके सोचता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है. बट क्योंकि उसके पास टाइम की शॉर्टेज थी, उसको स्कूल भी जाना था,
इसलिए वो इस पर सिर्फ थॉट करता हुआ, वंडर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब वो किससे मिलता है? पहला तो जो उसका इंटरेक्शन होता है इस पूरी स्टोरी में वो होता है टाउन हॉल से। अब सेकंड इंटरेक्शन उसका जो होता है, देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, राइट। अब यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ उसको दिखता है, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। नाउ दिस अप्रेंटिस हियर डजंट मीन very much, it's just people who are skilled and can train people, okay। तो अब वो ऐसे पर्सन के साथ था जिसको वो ट्रेनिंग दे भी रहा था और उससे ट्रेनिंग कुछ कुछ चीजों में हेल्प ले भी रहा था। तो उसने बुलेटिन को पढ़ा और फिर उसको देख के पूरा, मतलब यहाँ पे जो ये वॉचर था, जो ब्लैक स्मिथ था, इसने उस बुलेटिन बोर्ड को अपने अप्रेंटिस के साथ वो पढ़ रहा था और फिर उसने उसको फ्रांस को देखते हुए बोला, डोंट गो सो फास्ट। अब इसका भी यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। आप ये देखिए, वॉचर ने बुलेटिन बोर्ड को देखा और तब उसको इनडायरेक्टली बोला कि स्कूल ज्यादा जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से, मतलब जो उसका बोलने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब यहाँ पे आई फिर से यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस को लगा कि वो शायद उसका मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ठीक है। अब जो फ्रांस था वो भागते भागते बहुत तेजी से मिस्टर हेमल के गार्डन में पहुंच गया। अब आप ये समझ सकते हो कि मिस्टर हेमल का गार्डन यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वेल बिल्ट नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि जैसे आपकी ये क्लासरूम है फ्रांस की, तो उसके बाहर एक छोटा सा गार्डन फ्रांस ने अपने लिए बना रखा। अब वो यहाँ गार्डन में आ जाता है और वो इस क्लासरूम की विंडो से एक सीन देखता है, मतलब वो ये चेक करने की कोशिश करता है कि क्लास में सारे लोग आ गए हैं नहीं, मेरे मिस्टर हेमल जो मेरे टीचर हैं वहां पे आ चुके हैं नहीं, या क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, मिस्टर हेमल का एटीट्यूड क्या है, क्या वो गुस्से में तो नहीं है। सो ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड ही इज वेरी स्कैर्ड ऑल्सो। जैसे ही वो गार्डन तक पहुंचता है, स्कूल में एंटर करता है, वो एक और अनयूजुअल चीज देखता है। वो ये बोलता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बसल का मतलब मैंने आपको बताया, शोर शराबा, नॉइज, कमोशन। तो अभी तक जब तक वो स्कूल आया था वहां पे बहुत ज्यादा बसल रहता था, बहुत ज्यादा कमोशन रहता था, जो कि बाहर की स्ट्रीट में सुनाई देता था। इतना शोर होता था कि बाहर से आप पता लगा सकते हो कि स्कूल स्टार्ट हो गया है। The opening and closing of desk, right? Lessons repeated in unison. अब वहां पे अभी समझ सकते हो कि जैसे यूनिसन का मतलब है साथ में किसी भी चीज को पढ़ना। तो हो सकता है वहां के टीचर्स जो थे वो लेसन्स को बच्चों को रिपीट करके प्रोनाउंस कराते थे, मतलब रेपिटेशन कराते थे। पहले टीचर बोलता था, फिर उसी चीज को बच्चे रिपीट करते थे। तो इस प्रोसेस में वो इतना तेज बोलते थे कि बाहर के लोग जो होते थे उनको अपना कान पे हाथ रखना पड़ता था ताकि वो इंपॉर्टेंट चीज को सुन पाए। उनको उनकी इतनी आवाज होती थी कि वो नॉर्मल डे लाइफ की चीजों को नहीं सुन पाते थे। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू अंडरस्टैंड बेटर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग। रैपिंग का मतलब यहाँ पे है जो रूलर से साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं रूलर से, वो। But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. ये जो लाइन यहाँ पे है, but now it was also still. अब वो कह रहा है जो ये सारी चीजें थी कि जब भी मैं स्कूल जाता था तो डेस्क के मूव होने की आवाज आती थी, बुक्स के बंद होने की आवाज आती थी, बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे होते थे। अब वो आज के दिन सब कुछ शांत, कुछ भी आवाज नहीं थी। एंड ही हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। काउंटेड ऑन मतलब ट्रस्ट करना। अब वो कमोशन पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? इसका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि वो सिर्फ उस कमोशन के भरोसे या वो उस आवाज के भरोसे बैठा था कि जब तक ये सब आवाजें आएंगी उतनी देर में मैं अपनी क्लास में एंट्री कर लूंगा और मेरे टीचर को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उसको इसलिए स्कूल आ गया था कि भाई इतना शोर शराबा होता है, इतनी चहल पहल होती है, उस चहल पहल में अगर मैं अंदर जाता हूँ क्लास के अंदर तो मैं टीचर से बच जाऊंगा। बट जब वो आज स्कूल आता है तो उसको ये सब चीजें मिसिंग मिलती हैं। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पहला था जब वो टाउन हॉल गया, बहुत सारे लोग बुलेटिन बोर्ड पे खड़े हुए थे। अब जब वो स्कूल में आता है तो वो कुछ और सीन देखता है। सो नाउ ही इज एक्चुअली वेरी मच इन कंफ्यूजन एज टू व्हाट इज हैपनिंग। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट अ संडे मॉर्निंग। अब वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन कोई वीकडे ही ना हो, उस दिन संडे हो।
Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hemel walking up and down with his terrible iron ruler. अब जैसे मैंने आपको बताया था, वो इस विंडो से क्या दिखता है कि सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, और मिस्टर हेमल भी टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं अपने आयरन रूलर के साथ. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. अब उसके पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो वेट कर नहीं सकता था, तो उसको सबके प्रेजेंस में गेट खोलना पड़ा और सबके प्रेजेंस में अंदर जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. सी, यहाँ पे ब्लश का मतलब ये नहीं है कि वो शर्मा रहा. ब्लश का यहाँ पे मतलब है कि वाज एम्बैरेस्ड, एंड ही वाज एम्बैरेस्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. कि एक तो वो लेट आया, ऊपर से उसे पता था कि मेरी डांट पड़ने वाली है, कि मैं कुछ पढ़ के भी नहीं आया हूँ. सो ऑल दोस काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स वाज इन हिज हेड. But nothing happened. Mr. Himmel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly. We were beginning without you." अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज हुई. वही टीचर जो उसको हर चीज के लिए डांटता था, जिसकी वजह से वो इतना डरा हुआ था फ्रांस, आज जब फ्रांस लेट आया तो मिस्टर हिमल ने उसको कुछ नहीं बोला. बस इतना बोला कि जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं. लेकिन हाँ, मिस्टर हेमल ने ये भी बोला कि हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. तो इससे ये भी समझ आता है, क्लियर होता है कि फ्रांस की क्लास में कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी. एक्चुअल में होता ये है कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं. कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं और खेलते भी हैं, और कुछ बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं. तो टीचर की नजर में वो बच्चे एक्चुअल में क्लास को प्रोडक्टिव बना सकते हैं जो बच्चे उसमें इंटरेक्ट होना चाहते हैं. अब जैसे कोई बच्चा जो सिर्फ खेलता है, अगर वो किसी दिन क्लास में नहीं आए तो टीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इन यूजुअल केसेस देयर आर टीचर्स हु डू केयर, बट यू नो देयर इज अ वे कि अगर कोई बच्चा नहीं आया और वो बच्चा नहीं पढ़ता क्लास में तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. सिमिलरली फ्रांस की भी ऐसे ही रेपुटेशन थी कि फ्रांस क्लास में कभी आता था, कभी नहीं आता था. सो ही वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टडीज. सो मिस्टर हेमल जस्ट सेड कि अब तुम आ गए हो तो अपनी सीट पे बैठ जाओ, क्योंकि हम एनीवेज तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे. I jumped over the bench and sat down on my desk. Not till then, when I got a little over my fright. Over my fright का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वो क्योंकि इतना जल्दी में भागते भागते आ रहा था, तो जब वो सेटल डाउन हुआ, अपनी बेंच पे जाके बैठा, अपनी चेयर उसने साइड करी और वो सेटल हुआ. Little did I see that our teacher had on this beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब वो क्या देखता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि he is wearing some kind of a hat, he is wearing some kind of a blazer, and which is embroidered. तो वो जब मिस्टर हेमल को चेक करता है तो वो कहता है कि वो इतने फॉर्मली ड्रेस्ड क्यों है. और इस तरह की ड्रेस तो वो सिर्फ इम्पोर्टेंट डेज पे पहनते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन होता है, मतलब कभी कोई चेकिंग के लिए आता है, या फिर कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या कोई एनुअल इवेंट होता है. ये सब तो तभी पहनते हैं मिस्टर हेमल. तो आज उन्होंने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है. बिसाइड्स, यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू. बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे है कि ये सब तो हो रहा था, और क्या हो रहा था. द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. सोलम का मतलब यहाँ पे सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक तरीके से फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल. स्कूल में बच्चे बहुत आराम से बैठे हुए थे, टीचर्स बहुत ड्रेस्ड अप थे, कोई शोर शराबा नहीं था. सो देयर वाज लिटिल फॉर्मल थिंग गोइंग ऑन. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. अब सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज वो क्या देखता है कि जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, ये सारे लोग तो स्टूडेंट से भरी हुई है, पर जो लास्ट बेंचेस थी उसमें विलेजर्स बैठे हुए हैं. तो आज क्लास में विलेजर्स क्यों आ गए, सब विलेजर्स क्यों बैठे हुए हैं. ओल्ड हॉसर, मतलब यहाँ पे एक फार्मर था. हॉसर यहाँ पे हम फार्मर के लिए यूज करते हैं. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other beside. ये सारे लोग वहां पे लास्ट बेंच में बैठे हुए थे. Everybody looked sad, and Hauser had bought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. यहाँ पे आप ओल्ड प्राइमर को कह सकते हो. प्राइमर आपके एक तरीके से प्राइम आप वर्ड को देखो, हम कहते हैं प्राइमरी. ठीक है ना. प्राइमरी का मतलब होता है पहले, या फिर जो हम जैसे क्लासेस कहते हैं, हमारे स्कूल में प्राइमरी क्लासेस होती है 1 to 5, राइट. जो स्टार्टिंग एजेस होते हैं, जो स्टार्टिंग ईयर्स होते हैं किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, उनको हम प्राइमरी ईयर्स कहते हैं. इसी पर से हमारा बनता है वर्ड प्राइम.
है ना। तो ये जो प्राइमर था, प्राइमर का मतलब है कोई ऐसी पुरानी बुक, ओल्ड बुक जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स के बारे में बताया गया था। तो एक फार्मर एक बहुत पुरानी बुक, हो सकता है वो उसके बच्चों की बुक हो या उसको कहीं से मिली हो या उसने खुद कभी देखी हो, तो उस बुक को लेके आता है सिर्फ पढ़ने के लिए। एक फार्मर जो कभी आज तक क्लास में नहीं आया, वो एक ओल्ड प्राइमर को लेके वो वहां पे बैठ जाता है बुक को लेके, और अपने स्पेक्टिकल्स लेके और बुक्स को अपनी नीज में रख के बैठ जाता है। अब जब फ्रैंक उस चीज को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। While I was wondering, अब जब तक फ्रांस ये सब के बारे में सोच रहा होता है, वंडरिंग का मतलब होता है थिंक, राइट। वॉन्डर का मतलब होता है कुछ सोचना। जब तक फ्रांस इसके बारे में सोच रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड, माउंटेड का मतलब यहाँ पे है उन्होंने अपनी चेयर को लिफ्ट करा, ठीक है। लिफ्टेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव का मतलब यहाँ पे है सीरियस, okay, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine मैंने आपको बता दिया था, फ्रांस का एक पोर्शन जिसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक को उन्होंने एल्सेस बोला था, दूसरे को लॉरेन बोला था। अब जब तक फ्रांस इन सब चीजों को एक्चुअल में समझ पाता है, वो उसको कुछ आवाज आती है और वो आवाज होती है मिस्टर हेमल की। मिस्टर हेमल अपनी चेयर को पुल करते हैं और एक बहुत ही सीरियस टोन में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज के दिन जो मैं आपको लेसन देने जा रहा हूँ वो आपका इस स्कूल में, इस जगह में अब लास्ट लेसन होने वाला है, क्योंकि आज के बाद हम फ्रेंच पढ़ेंगे ही नहीं। क्योंकि फ्रांस हार गया था, तो फ्रांस की जो लैंग्वेज थी उस पे बैन लग गया था, उसको इम्पोज कर दिया गया था कि अब फ्रेंच की जगह आप लोग जर्मन पढ़ोगे। तो अब जो ये लास्ट लेसन हमने चैप्टर पढ़ा था, जो टाइटल पढ़ा था, ये लास्ट लेसन किसी का नहीं था, ये लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच था, क्योंकि फ्रांस अब अंडर द रूल ऑफ रशिया था। अब उनको उन्हीं की लैंग्वेज, जर्मन की लैंग्वेज सीखनी थी। वो ये भी बोलता है कि आज मैं चाहता हूँ आज के लेसन में आप सब अटेंटिव रहो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो पोस्ट मास्टर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो बहुत अच्छा बच्चा हो, हर पर्सन को अपनी लैंग्वेज का लेसन आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, कई बार एग्जाम से पूछी भी जाती है, व्हाट आर थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। आप समझ सकते हो कि जैसे हम बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में वैल्यू नहीं करते हैं, राइट। हम जब तक कोई चीज खो नहीं देते या हमारे लाइफ में उस चीज का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो जब वो ये शब्द जो थे मिस्टर हेमल के, जो ये वर्ड्स थे, वो फ्रांस के लिए एक थंडर के जैसे थे, एक तूफान की तरह थे, जो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था कि अचानक से एक दिन वो स्कूल आता है और उसे पता लगता है कि अब आप ये लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे। वो लैंग्वेज जो आपने बचपन से पढ़ी है, जो लैंग्वेज आपकी नेटिव है, एक तरीके से आपकी फॉर्मल ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। तो वो वर्ड्स जो थे ना कि ये लास्ट लेसन है, वो उसके लिए एक थंडर क्लैप से भी ज्यादा हेवी थे, मतलब इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हिम। ओ द रेचेस, अब यहाँ पे रेचेस का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं ओ माय गॉड, ओ शिट, एग्जांपल है, तो उसी वे में इस रेचेस को बोला गया है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल। अब फ्रांस समझ आता है कि ये इंफॉर्मेशन टाउन हॉल पे लगी हुई थी, इसी वजह से इतना ज्यादा क्राउड था। My last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking birds' eggs or going sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रांस को गिल्ट हो रही है। किस बात की गिल्ट हो रही है? कि उसने आज तक अपनी लैंग्वेज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि जब भी उसको पढ़ने की बात आती थी तो वो कभी अपने क्लास के बाहर के व्यूज को एंजॉय करता था, कभी वो छुट्टी लेके चला जाता था, अगर वो क्लास में होता था तो वो अटेंटिव नहीं होता था। तो वो आज बोल रहा है कि ये सारी बुक्स और नोटबुक्स, ये सारी ग्रामर की बुक्स जो आज तक उसको बर्डन लगती थी, अब वो उसको अपने दोस्त लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने दोस्त से अलग हो रहा है। अब वो इतना ज्यादा सेंटिमेंटल, इतना इमोशनल हो रहा है अपनी चीजों को लेकर। एंड मिस्टर हेमल टू, उसको सिर्फ इनके लिए बुरा नहीं लग रहा है, उसको मिस्टर हेमल के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि होता है बच्चों के लिए टीचर से एक एक कनेक्शन बनता है, चाहे टीचर स्ट्रिक्ट हो या टीचर्स लीनियंट हो, बट देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ बॉन्ड और ऑलवेज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट बिल्ड अप सबका बन जाता है। तो वो मिस्टर हेमल को भी के लिए भी बोलता है
The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler. मतलब जितनी बार वो सोच रहा था कि आज के बाद मैं मिस्टर हेमल को नहीं देखूंगा, उतनी बार उसको लग रहा था कि यार कोई बात नहीं, अगर वो रूड भी थे, कोई बात नहीं, अगर उनका रूलर भी था, मतलब अब वो ये चाह रहा है कि वो उसके टीचर से अलग ना हो, क्योंकि अगर लैंग्वेज नहीं रहेगी तो लैंग्वेज पढ़ाने वाला भी नहीं होगा, वो भी फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएगा, वो जर्मन नहीं पढ़ा पाएगा, एंड इवेंचुअली ही आल्सो हैज टू लीव। तो अब ना तो वो उन बुक्स को छोड़ना चाहता है जो उसको एक टाइम पे न्यूसेंस लगती थी, और ना ही वो मिस्टर हेमल को छोड़ना चाहता है जो एक टाइम पे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्रैंकी लगते थे। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब उसको समझ आता है कि अपने लास्ट लेसन की ऑनर के लिए, कि आज वो आखिरी लेसन डिलीवर करने वाला है, इसलिए he had come very nicely dressed up. Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too. अब वो जो पीछे लोग बैठे थे, वो भी क्यों बैठे थे? अब फ्रांस को समझ आता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में भी गिल्ट है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया, क्यों वो कभी नहीं पढ़े। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। तो उनका तरीका था कि भाई 40 साल के बाद आज एक तरीके से उस टीचर को रिटायरमेंट मिल रहा है, विलिंगली नहीं मिल रहा है बट अनविलिंगली उसे रिटायर करा जा रहा है, तो उसकी रिटायरमेंट की एक तरीके से रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स देने के लिए उस दिन विलेज के सभी लोग उस क्लास में आए थे, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। अब उनको अपनी कंट्री की भी लग रही है, क्योंकि देखिए होता यही है कि जब ब्रिटिशर्स भी आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी, या फिर इंग्लिश उस टाइम पे मीडियम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यही होता है कि जब दूसरे कंट्री आपके कंट्री में आते हैं तो वो अपनी चीजों को इम्पोज कर देते हैं, तो अब उनको अपनी कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट फील हो रहा। While I was thinking all of this, अब हो सकता है कि सब सोच रहा था फ्रेंड्स कि विलेजर्स क्यों आए हैं और मिस्टर हेमल ड्रेस में क्यों आए हैं, I heard my name called. It was my turn to recite. Recite का मतलब बोलना। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब यहाँ पे मतलब है कि पहले जब भी मिस्टर हेमल उससे कोई क्वेश्चन पूछते थे वो कभी खड़ा नहीं होता था या फिर कभी आंसर नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको उस रूलर से बहुत डर लगता था। लेकिन आज उसने अटेम्प्ट किया, आज उसने कुछ थोड़े से वर्ड्स बोलने की कोशिश करी, बिकॉज उसे पता था आज के बाद मिस्टर हेमल उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन भी उसके लिए क्लास क्वेश्चन था जिसका वो आंसर करना चाहता था, तो उसने बहुत मुश्किल से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, तो जब मिस्टर हेमल ने सुना कि फ्रांस फाइनली कुछ अटेम्प्ट कर रहा है, ही सेड, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे मिस्टर हेमल फ्रांस को क्या समझा रहे हैं कि हम हमेशा टाइम की बात करते हैं कि आज नहीं हम कल कर लेंगे, आज नहीं हम एक हफ्ते बाद कर लेंगे, या एक मंथ बाद कर लेंगे, एक ईयर बाद कर लेंगे। हम अपने बहुत से काम जो होते हैं वो टाइम पे डिपेंडेंट रह के करते हैं, उनको आज प्रेजेंट में ना करके हम डिपेंडेंसी शो करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे ना, एक्सेट्रा। हम कल तक के लिए छोड़ देते हैं, एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट। अब देखो उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि तुमने कभी भी अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया, तुम सोचते रहे कि मैं अगली क्लास में सीख लूंगा, या मैं अगले वीक में सीख लूंगा, अगले मंथ में सीख लूंगा, और आज देखो उस डिपेंडेंसी ने तुम्हें कहाँ ला के रख दिया है, वेयर यू आर नाउ। एंड दैट इज द ग्रेट ट्रबल विल एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अब एक तरीके से वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको टॉन्ट करते हुए बोलता है कि एल्सेस के साथ, यहाँ पे उसने एल्सेस को एक कैटेगरी की तरह यूज करा है कि एल्सेस के जितने भी लोग हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ काम को डिले करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू डिले द वर्क। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? तो अब यहाँ पे मिस्टर हिमल क्या कह रहे हैं कि देखो वो जो प्रिशियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने तुम्हें ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया है, तुम्हारे को रूल कर लिया है, अब उनको और मौका मिलेगा तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। वो तो बोलेंगे कि तुम तो फ्रेंचमैन हो ही नहीं, तुमको तो फ्रेंच ही नहीं आती, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन बोल सकते हो खुद को, तो तुम तो जर्मन सीखो, तुम्हारे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मतलब तुमने खुद अपनी रिस्पेक्ट, अपनी लैंग्वेज, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट अपने एनिमीज के सामने बहुत छोटी कर दी है। But you are not the worst, poor little France. We have a great deal to reproach ourselves with. अब यहाँ पे वो कहते हैं मिस्टर हिमल कि फ्रांस सिर्फ
तुम इस रीजन से शर्मिंदा नहीं हो। हम सब के पास अपनी लाइफ में बहुत सारे रीजंस हैं गिल्टी फील होने के लिए। रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, जब गिल्टी या अशेम्ड फील होता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ। अब वो बताता है कि कौन कौन गिल्ट के लिए है, अब किस किस को हम गिल्ट में डाल सकते हैं। देखो, एक तो फ्रेंड्स खुद ही गिल्टी था कि उसने अपनी क्लासेस को कभी सिंसेरिटी से नहीं लिया। दूसरा, पेरेंट्स, जो फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, अब मिस्टर हेमल यहाँ पे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को भी कुछ एक्सटेंट तक गिल्टी मांगते हैं। वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो यू हैव अ लिटिल मोर मनी। तो अब मिस्टर हिमल बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था, वो तुम्हें क्लास में भेजने की बजाय मिल्स पे भेजते थे, फार्म पे भेजते थे, ताकि उनके घर में थोड़ा पैसा आ जाए। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन जिसको वो ब्लेम करता है, वो खुद को करता है। मिस्टर हेमल खुद को ब्लेम करते हैं एंड ही सेज एंड आई, मतलब और मैं भी ब्लेम करने के लिए हूँ, मेरे को भी यहाँ पे गिल्टी होना जरूरी है। आई हैव टू बी ब्लेम्ड ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। अब कई बार ऐसा हुआ होगा मिस्टर हेमल ने भी क्लास में नहीं पढ़ाया होगा, या छुट्टी डिक्लेयर कर दी होगी, या फिर फ्रेंड्स को अपने गार्डन में पानी देने के लिए भेज दिया होगा, है ना। तो वो इन चीजों के लिए भी बोल रहा है कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, गलती मेरी भी है कि मैंने भी इन चीजों को कभी सीरियसली नहीं लिया। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? So now he is blaming himself for all these things. Then from one thing to another, Mr. Hemal went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it amongst us. तो यहाँ पे मिस्टर हिमल जो है जाते जाते फ्रेंच की, उनकी अपनी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो फ्रांस के लोग हैं वो इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझे, अपनी लैंग्वेज को ना भूलें। और वो क्या बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल है, और हमें इसे गार्ड करना है, मतलब हमें इसे प्रोटेक्ट करना है एट ऑल कॉस्ट। बिकॉज अब क्यों करना है, इसका एक बहुत अच्छा रीजन उन्होंने दिया है। When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब उनका मानना ऐसा है, enslaved का मतलब तो पहली बात आप समझ लो, enslaved का मतलब है जब कोई गुलाम होता है ना। हमारे पास कोई रूलर है, तो अगर कोई भी लोग हैं उनको गुलाम बना दिया जाता है, उनको कोई रूल करता है, तो अगर वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ना दें या उनकी लैंग्वेज में उनके पास कमांड ना हो, तो वो फ्रीडम पाने में डिले हो सकता है उनको। और अगर वहीं उन्हें अपनी लैंग्वेज पे कमांड हो, तो एक तरीके से उनकी लैंग्वेज जो है, उनके प्रिजन का, यहाँ प्रिजन का मतलब है जो उनको रूल करा जा रहा है, उसके लिए एक बहुत बढ़िया की है। मतलब वो उस लैंग्वेज के थ्रू आजादी पा सकते हैं। तो उन्हें अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड आर लेसन। अभी जो लास्ट लेसन था उसने फाइनली स्टार्ट कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब आज ये फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है चैप्टर। क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि आज वो उस पर अटेंशन दे रहा है, जानते हुए कि आगे से ये कभी भी लेसन वो नहीं पढ़ेगा। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. तो आज मिस्टर हेमल जो है वो भी बहुत पेशेंस से पढ़ा रहे हैं, और फ्रांस जो है वो भी बहुत पेशेंस से सुन रहा है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into our head at once too. अब कैसा लग रहा था, जैसे मिस्टर हेमल जो थे वो सब कुछ बताना चाहते थे, क्योंकि अब उनको टाइम की शॉर्टेज लग रही थी कि भाई ये मेरा लास्ट लेसन है, मैं आज बच्चों को जितना बता सकता हूँ उतना ज्यादा अच्छा है। तो उनके लिए क्या था, ही वांटेड टू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल इन वन गो, और एक बार में वो सब कुछ बताना चाहते थे। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Himmel had new copies for us, written in beautiful round hat, Franz Elsie's pencils. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of her desk. अब उस दिन पहले तो उन्होंने एक रीडिंग का कराया, रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में। उसके बाद उन्होंने राइटिंग कराया, और राइटिंग के लिए वो एक नोटबुक लेके आए थे जिसपे फ्रांस एलसीएस के बारे में एक लोगो बने हुए थे। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब आज के दिन सब लोग अपना काम कर रहे थे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो पोस्ट मास्टर हो, सब लोग उस क्लास में बैठ के शांत बैठे हुए थे। The only sound was the scratching of the pens over the paper,
Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to it. अब यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि जो आवाजें आ रही थी उस क्लासरूम में वो सिर्फ पेन ऑन पेपर की आ रही थी, जैसे कोई लिख रहा हो। इतनी शांति थी, सब लोग इतने अटेंटिव थे। और अगर कोई बीटल्स उड़ के आ भी रही थी तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing a German? Even the pigeons. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब जैसे ही फ्रांस लिखते लिखते हेमल को देखता है, मिस्टर हेमल को चेक करता है, मिस्टर हेमल क्या होता है, वो हर एक चीज को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सारी चीजों को अपने दिमाग में बैठाना चाहते हैं कि भाई ये मेरा लास्ट डे है और आज मैं सारी चीजों को अपने दिमाग में भर लेता हूँ। For 40 years, he has been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the room. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the above room, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब वो यहाँ पे इस पैराग्राफ के थ्रू सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रांस ने 40 साल इसी लोकेशन पे इसी क्लास में स्पेंड कर दिए अपनी सर्विसेज देते हुए। फ्रांस मिस्टर हेमल नहीं चेंज हुए, सॉरी मिस्टर हेमल ने 40 इयर्स यहाँ पे दिए हुए अपनी लाइफ में, अपनी सर्विस में। मिस्टर हेमल में कोई चेंज नहीं हुआ, मिस्टर हेमल वैसे के वैसे रहे, लेकिन जो भी ट्रीज थे, जो भी हॉपवाइन थे, वो सब बड़े, वो सब पुराने हो गए, डेस्क पुरानी हो गई, लेकिन मिस्टर हेमल वैसे के वैसे थे। 40 साल से कंसिस्टेंट कंटिन्यूअसली उन्होंने पढ़ाया है और आज उनको वो क्लास छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि उनको कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा। But he had the courage to hear every lesson to the last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Baba down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. अब लास्ट में जब उनकी रीडिंग हो चुकी थी, फिर उनकी राइटिंग हो गई थी, इसके बाद उन्होंने एक हिस्ट्री की क्लास करी। और हिस्ट्री क्लास में जो ओल्ड हॉजर था, जो मैंने आपको बताया था फार्मर, उसने भी कुछ ना कुछ लेसन्स को रिपीट करना शुरू कर दिया। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember the classes. अब यहाँ पे skip तो लिया, यहाँ पे हौसले की बात हो रही है कि वो भी जब रीड कर रहा था तो बच्चों को हंसी आ रही थी, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन हंस भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। वो एक तरीके से मिक्स्ड इमोशन थे, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से उनको अपना लास्ट लेसन पढ़ना पड़ेगा और ऐसे लोग आके वहां पे इस लास्ट लेसन को पढ़ेंगे। At church, at once, one second. All at once, the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so hot. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 12 बजे, ठीक है, अब टाइम है, रशियन सोल्जर्स ने ऑलरेडी एंटर कर लिया है और मिस्टर हेमल जो थे उन्हें पता था कि अब मेरी क्लास का लास्ट टाइम है, दिस इज द एंड ऑफ माय क्लास, और वो खड़े होते हैं। तो फ्रांस को ऐसा लगता है कि आज वो मुझे इतने लंबे दिख रहे हैं क्योंकि उसने बहुत ध्यान से मिस्टर हेमल को देखा, वैसे उसने कभी नहीं देखा होगा। माय फ्रेंड्स, अब लास्ट में जो मिस्टर हेमल के वर्ड्स थे वो क्या थे, माय फ्रेंड सेड ही, but something choked him, he could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive le France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. अब होता क्या है कि जब प्रुशियन सोल्जर्स आ जाते हैं तो मिस्टर हिमल जो है वो अपनी चेयर से उठते हैं और वो कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, होता है क्योंकि जब वो लास्ट डे है, बहुत सारे इमोशंस उनके अंदर होते हैं, बट वो नहीं बोल पाते। तो जब एंड में वो अपनी क्लास को छोड़ रहे हैं तो वो बोर्ड पे फ्रांस, ओके, ये लिखते जाते हैं, इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन उस बोर्ड पे लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि काश ऐसा हो कि हमारा फ्रांस कभी भी किसी के अंडर ना आए और बहुत लंबा चले। बहुत से हमारे जनरेशन जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़े, बहुत सी हमारी जनरेशन हैं जो फ्रांस को आगे बढ़ाए, हमारे कल्चर ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए। आज भले हम जर्मनी रूल के अंडर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी जो खुद की कंट्री है, फ्रांस है, उसको हम और ज्यादातर करें, लॉन्ग लिव रहे।
और वो ये लिखकर क्लास से निकलते हुए जाते हुए बोलते हैं कि अब आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हो। सो ये चैप्टर एक तरीके से आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग था कि किस तरीके से फ्रांस को रियलाइजेशन होता है कि वो इतने टाइम से अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, और आज जब उसकी कंट्री किसी और कंट्री के रूल के अंडर है और अब वो उस लैंग्वेज को कभी नहीं देख पाएगा, तो वो जो इमोशंस थे जो यहाँ पे मिस्टर हेमल के थ्रू भी दिखाए गए हैं वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि हमें क्यों अपनी लैंग्वेज, अपने ट्रेडिशंस की वैल्यू करनी चाहिए। सो आई होप ये हर एक लाइन का मतलब, हर एक वर्ड का मतलब मैंने बहुत ब्रीफ में आपको समझा दिया है, and I'm sure that when you read this during the time of your examinations, you'll be able to understand even better when you read, when you hear the chapter twice or thrice. So I'll be uploading more videos from the same book, from the same chapter. I hope that you like the video, and please do share it with your friends and wait for the next video to come. Thank you.